Hello dear children, I am Rishi Patel, your social studies teacher, and as you know that we have started the first lesson of history, and that is when, where and how. And I hope that you have watched the video that I have sent to you in the WhatsApp group, okay? And I hope that you have also made the map of India, the Akhand Bharat, the map of Akhand Bharat, okay? And now we are going to start the next topic, and that is what? That is about the ancient periods of India, okay? Or in the other word, you can say that not only in India but in all over the world, the history can be divided into three broad bases, okay? And which are the three broad bases? So these are ancient period, medieval period and modern period. So you can see here that history of all the country can be divided into three parts: ancient, medieval and modern, okay? Again in India also, if we talk about only medieval period, so we can say that from the year 700, just wait a second, you can see here which is given here 700 to 1715, or you can say from the 8th century to the 18th century. So this is the broad division of the medieval period of India. तो जैसे कि इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को थ्री पीरियड में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, ओके? सेम उसी वे में इंडिया की भी हिस्ट्री उसी तरह से डिवाइड होती है। और अलग अलग कंट्री में जो ये पीरियड होता है वो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सेम है, वहाँ पे किस तरह से चेंजेस शुरू हुए, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, उस बेस पे ही पीरियड को क्या किया जाता है, उस पीरियड को डिस्क्राइब किया जाता है। इंडिया में क्या हुआ, तो इंडिया में 8th सेंचुरी के आसपास कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ओके? जहाँ से एंशिएंट पीरियड ख़त्म होता है एंड वन न्यू पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट इज़ medieval period, okay? And you can see here that roughly this period can be determined from the year of 700 to 715, or in century we can say from the 8th century to 18th century, approximately 18th century, okay? And one more thing that you should know, that we cannot fix any accurate time to describe any period, कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि 100 तक जो है वो हमारा एंशिएंट पीरियड है और 101 से स्टार्ट हो जाता है हमारा मिडिवल पीरियड, ठीक है? तो ऐसा हम कोई पार्टिकुलर ईयर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी भी कंट्री में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, ओके? जैसे एंशिएंट टाइम में क्या था, सो जनरली पीपल व्हाट दे फोकस्ड अपॉन रिलीजियस मैटर ओनली, ओके? जो यज्ञ हुआ करते थे, देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, राजा महाराजा का सिस्टम हुआ करता था, ओके? तो उसके बाद से जब ये सिस्टम चेंज होने लगा, दूसरे कंट्री के लोग हमारे वहाँ क्या आने लगे, ओके? चाहे वो इन्वेड करके, अटैक करके या फिर यहाँ पे सेटल होने के लिए, ओके? तो ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में या 700 के आसपास क्या होता है, चेंजेस शुरू हो जाते हैं अपनी कंट्री में। और वो चेंज कैसे होते हैं कि एंशिएंट टाइम ख़त्म होने वाला रहता है और फिर मिडिवल टाइम स्टार्ट होता है। एंड इन मिडिवल टाइम वी विल सी व्हाट that some foreign invaders, especially the Muslim rulers, okay, they came in our country and they started to change all the aspect of society. It means economic part, okay, social part, political part. Politically they influence so much in our country. For example, they started to overthrow the existing king from here, okay, and they took the complete control on their hand, okay? So by this way we can say that from 700 to 750 a new period started in our country, and that was what, the medieval period, okay? Not only in what India but all over the world there are three periods in which we can describe the history of the country, and that is ancient period, medieval period, and they will move towards the modern period. So again we will see some changes, okay, in the medieval time. तो ये रूलर्स भी धीरे धीरे क्या होते हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे और फिर क्या होगा, जो डेवलप्ड नेशन के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ कंपनीज इंडिया में आने लगेंगी और फिर कुछ चेंज शुरू होने लगेगा जिसको हम कहेंगे मॉडर्न पीरियड, ओके? सो
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट वर द वेरियस रीजन्स, कि कैसे ये चेंजेस होने शुरू हो गए। ओके, तो मिडिवल टाइम की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट की मैक्सिमम जो कंट्रीज़ थी वो क्या हुई, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ये मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वो इंडिया में धीरे धीरे क्या हो, इंडिया में आनी शुरू हो गई। ओके, इस साइड से। तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, स्पेशली जो मुस्लिम जो रूलर्स थे, चाहे वो हमारा अफ़गानिस्तान का एरिया हो, ईरान का एरिया हो, जहाँ जहाँ से जो रूलर्स हमारे वहाँ वो या कुछ मंगोल्स भी हों, ठीक है, जो मंगोलिया वाले रीजन से इंडिया में आए, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इंडिया में कुछ चेंजेस शुरू हो गए और वो एक नया पीरियड स्टार्ट हुआ जिसको मिडिवल टाइम कहते हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ सम न्यू रूट्स, व्हाट आई टोल्ड यू दैट व्हेन दिस द era of Muslim rulers what came to an end, okay, and some companies some traders when they entered in our country through various sea routes। तो हम देखेंगे पुर्तगाल से क्या होता है, पुर्तगाल से कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस रूट को फॉलो करते हुए वो कहाँ पे आते हैं, वो इंडिया में जो कर्नाटका का जो एरिया है वो वहाँ पे आते हैं, कालीकट में। ओके, आपको याद भी होगा 1498 में, ओके, जो वास्को ड गामा, आपको नाम आपको इसका याद होगा, वास्को ड गामा। ओके, ये इंडिया में आता है इस रूट के थ्रू। ओके, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये रूट बन जाता है और केवल पुर्तगाली नहीं, इसके बाद स्पेनिश जो हैं, डेनमार्क के जो लोग हैं, ओके, बहुत सारे लोग क्या हैं इसी रूट को फॉलो करते करते क्या होते हैं, वो इंडिया में एंट्री करते हैं और फिर इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो पर्सपेक्टिव जो होता है उसको वो क्या करते हैं, वो उसको चेंज करने लगते हैं। ओके, एंड एट लास्ट फ्रॉम ब्रिटेन we all know that the East India Company, okay, when it entered in our country, so it influenced what very much about the political, economical or social perspective of our country। और इसने ये जो जितने भी लोग थे वो यहाँ पे किसी तरह से वो रूल नहीं करना चाहते थे, बट जो ये लोग हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, एज ए ट्रेडर तो आए थे, लेकिन उनका ये भी था कि पॉलिटिकली यहाँ पे हम क्या करें, कंट्रोल करें और यहाँ पे हम रूल करें। ओके, तो यही सब चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज बहुत ज़्यादा होती हैं और वहीं से हमारा मॉडर्न पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और था यहाँ पे, अब क्या है, यहाँ पे अब आपको अगर पता होना चाहिए कि ये हमारा रेड सी है, यहाँ पे रेड सी है और ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। ओके, तो 1869 में एक कैनाल को बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्वेज कैनाल। ओके, 1869 में यहाँ पे एक कैनाल बनाया जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, जो कि ये सबसे जो लॉन्ग रूट जो था, जो यूरोपियंस इंडिया में आने के लिए एडॉप्ट करते थे या उसको यूज करते थे, अब क्या हुआ, अब यहाँ से अब ये यूरोपियंस जो होते थे मेडिटेरेनियन के थ्रू, स्वेज कैनाल के थ्रू ये रेड सी में आते थे। रेड सी के बाद वो इंडिया में क्या करते थे, ईजिली वो एंट्री कर जाते थे। ओके, सो यू कैन सी दिस रूट, ओके, एंड दिस रूट एंड दिस रूट, अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये रूट बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगेगा और जब ये रूट शॉर्ट हो गया तो बहुत सारी कंपनी जब इसी रास्ते इंडिया में आने लगी और इंडिया में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए हमको मिलते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, दैट इज़ व्हाट द सोर्सेज। अच्छा, अब ये सिंपल सी बात है कि हिस्ट्री, तो हम लोग तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, चाहे वो बाबर का अटैक हो, चाहे अकबर के जितने भी रिफॉर्म्स हो, या जो भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, जो बिल्डिंग्स शाहजहाँ ने बनवाई हैं, तो एक्चुअली में हमने तो उसको देखा नहीं है। ओके, हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन हमको उसके बारे में पता है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू अपने हिस्ट्री को क्या करते हैं, हम जानते हैं। ओके, सो दीज सोर्सेज आर नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो कैसे जानते हैं, आपको ये बताया जाता है, आप उसको पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, इसका मतलब किसी न किसी सोर्स से ही आप हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री है जो बीत चुका है। तो आपके पास कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। सो ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट, जस्ट वेट अ सेकेंड, yes, first we can say the literary sources, and second we can say what, archaeological sources. So first we will see the literary sources. So literary source means the written record of the past that is perfectly saved still today. Okay,
and these written records were recorded by some foreign travelers, or you can say some people who are generally very important in the court of the king. Okay, so they wrote about the wars of the king, their different activities, some we have some religious books also, the Vedas, Upanishad. तो ये सब रिटन फॉर्म में हैं. तो जो चीज़ें हमको रिटन फॉर्म में मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं लिटरेरी सोर्सेज. ओके, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें कुछ रिलीजियस हो सकते हैं जो उस समय के रिलीजन के बारे में बताएं. ओके, कुछ सेकुलर हो सकते हैं, वहाँ के सेकुलर का मतलब यहाँ पे वही उसी से है, धर्म से है, उसके बारे में वो हमको बताएं. इसके साथ जो फॉरेनर्स, तो आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो एंशियंट टाइम में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे वहाँ आते हैं, मिडिवल टाइम में भी और एंशियंट टाइम में. और वो जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ के बारे में वो लिखते हैं, जिनको कहा गया क्या, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स. मतलब जो ट्रैवलर्स जो थे, जो बाहर के लोग थे, जो इंडिया में आए और यहाँ के सिस्टम को देखा और उसको एक परफेक्टली क्या किया, उस डाटा को सेव कर लिया एक बुक, एक कॉपी में या किसी चीज़ में. ठीक है, तो जब आज भी हम उसको पढ़ते हैं तो उस समय के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है. तो ये भी जो होते हैं क्या, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, वो भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं किसके, हिस्ट्री के. ओके, सो वी कैन सी हियर द रिटन रिकॉर्ड्स. यू कैन सी द रिटन रिकॉर्ड्स, द बुक्स, वेदास, उपनिषद, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लिटरेरी सोर्सेज में. कुछ और भी सोर्सेज हैं जो रिटन फॉर्म में तो नहीं होते हैं, बट दे आर अ वेरी गुड सोर्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, in India various buildings were made by different rulers. Okay, they started some coins also. Okay, तो सपोज करो उस समय कुछ, अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, तो ये क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज होते हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, तो दे मे बी मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, फिगर्स. ओके, रिटन पिलर राइटिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं. ठीक है, और जो रिटन फॉर्म में होंगी, कॉपी के फॉर्म में, बुक के फॉर्म में, वो क्या होंगी, लिटरेरी सोर्सेज. ओके, तो मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, क्वाइन. सपोज करो क्वाइन, पहले क्या एक क्वाइन है, अब क्वाइन में हमने क्या किया, किसी भी देवी देवता का या किसी भी जानवर के बारे में हमने बना दिया. सपोज करो हमने लॉर्ड शिवा के बारे में कोई क्वाइन हमने देखा कि वहाँ पे उस पर बना हुआ है लॉर्ड शिवा का फिगर, तो हम ये एक्सेप्ट, मतलब वो हम कर लेते हैं कि हाँ उस समय लोग जो क्या थे, वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे. गॉडेस लक्ष्मी का अगर फिगर हमको मिल जाता है तो ये हम समझ लेते हैं कि उस समय इनकी पूजा हुआ करती थी. कुछ एनिमल्स का फिगर मिल जाता है तो हमको ये पता हो जाता है कि उस समय लोग इस एनिमल का यूज किया करते थे. ओके, तो क्वाइंस हो गया. जैसे कि अशोका का जो पिलर्स है, तो पिलर्स में उसने जितने भी उसके ऑर्डर थे उसको वहाँ पे उन्होंने लिखवा दिया था. तो जब हम आज उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो पता होता है कि हाँ उस समय किस तरह का जो सोशल स्ट्रक्चर था हमारा. ओके, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स भी हैं, वहाँ पे भी कई तरह के हमको फिगर्स मिल जाती है. स्पेशली जो केव्स होते हैं, जो गुफा वाले जो फिगर होते हैं, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का, अजंता अलोरा के बारे में अगर हम देखें तो लॉर्ड बुद्धा का बहुत सारा फिगर है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के बारे में लोग जानते थे, उनकी वर्शिप करते थे. ओके, सो दीज आर द सम सोर्सेज. लाइक आर्कियोलॉजी रिमेन्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट जो बनाए गए थे उनका बचा हुआ पार्ट है, उनसे भी हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं. इंस्क्रिप्शन, जो लेख होते हैं, कहीं पे पत्थरों पे लिखा हुआ, पिलर्स पे लिखा हुआ. ओके, न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबरिंग कोई भी चीज़ हो. आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वाइन से भी उसको रिलेट कर सकते हैं. ठीक है ना, कोई लकड़ी का क्या है, कोई वुड ब्लॉक है, वहाँ पे हमने कुछ वहाँ पे लिख दिया. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होती हैं, और ये रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं. सो वी कैन से दैट द sources of history can be divided into two parts, literary and archaeological sources. Literary means what? So it means that we have the written record. Archaeological means what? So these are the monuments, these are the paintings, okay, coins. So these are called what? Archaeological sources. So dear children, I think this is all for today. Okay, and I will start a new lesson of history or political science in the next part. Thank you.